Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farooq Ahmed. Today, our topic of discussion is method of plant nutrition. As you know that every living organisms need some nutrients for their proper growth and development. Like all living organisms, plants also need certain nutrients for their proper growth and development, and they take the nutrients for through various methods such as saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and symbiotic nutrition. First of all, what is saprophytic nutrition? Saprophytic nutrition क्या होती है? कि type of nutrition in which plants obtain their nutrients from dead organic material or dead organic matter is known as saprophytic nutrition. Dead organic matter, for example, dead leaves, rotting trees, trunk, etc. These saprophytic organisms produce extracellular enzymes, mean these organisms grow at a place where organic matter are present and they produce extracellular enzymes which digest these organic matter into small pieces, and these small pieces are then absorbed by the cells of that organism or plant. For example, bacteria and fungi. Bacteria convert protein and other nitrogenous compound of plants, of dead plants and animals into nitrates. These nitrates are taken by plant through the roots through a process known as assimilation, and these nitrogenous compounds are used to build amino acid and other protein products. Similarly, fungi also known as decomposer are they obtain their food through saprophytic nutrition. The second type of nutrition is parasitic nutrition. The type of nutrition in which organisms obtain their food from their host. In parasitic nutrition, there is a combination of host and parasite. The parasite obtain their nutrients from their host. Parasite either live inside or outside the body of a host. And in case of plants, the parasite or parasitic plant always live outside the body of a host plant. Parasitic plants contain different structures to attach with host or to obtain nutrients or to absorb nutrients from their host. These specialized structures are Haustoria, sucker, and tendrils. Haustoria are present in case of fungi. अगर आप फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर को हम हास्टोरिया कहते हैं. जैसे आपने सुना पता आपको जो पक्सीनिया आ गई, उसके बाद अस्टीलैगो, पक्सीनिया ग्रेमिनस रह गया, पक्सीनिया ग्रेमिनस एंड अस्टीलैगो ट्रिटिसाइड. These are special fungi which contain haustoria for attachment or absorption of nutrient from the host. In case of plant, they contain either sucker or tendril. अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में इस तरह सकर या अगर टेंड्रिल्स होते हैं. इस तरह की स्ट्रक्चर आपने प्लांट में देखी होगी इस तरह, ठीक है. दीज आर सकर्स और इस तरह की स्ट्रक्चर आप देखी होगी, ठीक है. अब ये ट्विनिंग या इसको टेंड्रिल्स वगैरह कहते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह की ये प्लांट्स में तरह की डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. ये होस्ट प्लांट के साथ अटैचमेंट के लिए तो वो इन स्पेशल स्ट्रक्चर सकर या टेंडल की मदद से क्या होता है, होस्ट प्लांट के साथ अटैच होते हैं और वहां से उनके जो फ्लोएम टिश्यूज हैं वहां से क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं. अब पैरासिटिक प्लांट की एग्जांपल आ गई जैसे कैस्कुटा रिफ्लेक्सा, इसका पूरा नाम है. तो ये अपनी जो फूड है वो पैरासिटिकली दूसरे होस्ट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. तीसरी आगे इसमें कौन सी, symbiotic nutrition. It is a mutualistic association between two different organisms in which both partners get benefit.
म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता है। अब इनकी एग्जांपल जैसे हम देखें तो क्या आ गया, लाइकन आ गया, माइकोराइज़ा आ गया और रूट नोड्यूल आ गया। अब लाइकन इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब एल्गी इज फोटोसिंथेटिक, एल्गी फोटोसिंथेटिक है, वो फोटोसिंथेसिस से आपकी फूड खुद प्रिपेयर करती है। अब एल्गी जो होती है वो फंजाई को क्या कहते हैं, फूड देती है, और इन रिटर्न जो फंजाई है वो क्या करती है, एल्गी को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है और क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे एसोसिएशन में दोनों को फायदा हो उसको हम सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। दूसरा के हमारे पास माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा इज अ एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स, रूट एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई का जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोराइज़ा कहते हैं। अब जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और इन रिटर्न जो फंजाई है, फंजाई प्लांट की क्या करती है कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। मोर देन 90% जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि माइकोराइज़ल एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ, क्योंकि अगर माइकोराइज़ल एसोसिएशन ना बने तो प्लांट एनफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद तीसरे इसमें एग्जांपल आ गया रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल बेसिकली व्हाट इज रूट नोड्यूल? रूट नोड्यूल इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स present on the roots of leguminous plant। रूट नोड्यूल क्या होती है? बेसिकली ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स है जो लेगुमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। लेगुमिनस प्लांट बेसिकली वो प्लांट जिनके साथ फलियां लगती है, जैसे लोबिया आ गई, मटर आ गई, एकेशिया आ गई, etc, जिनके साथ फलियां लगते हैं वो लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। तो मोस्टली जो लेगुमिनस प्लांट है वो क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल बनाते हैं, और रूट नोड्यूल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट की हेल्प करते हैं। रूट नोड्यूल प्लांट है, प्लांट क्या कहता है? बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये फूड भी देता है और शेल्टर भी देता है, और जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कहते हैं? प्लांट की हेल्प करते हैं। अल्लाह हाफिज़।